Good morning, dear students. And we are live now. We are live at the Navjeevan Study 24/7 YouTube platform, Study 24/7 Instagram and Facebook, all social media handles. Uh, we are live now. So we are starting a series of class 12th summary. We have started series for the class 12 summary, MCQs, abstract based question, and many more things behalf of literature and writing section. So we have to completed earlier videos of previous chapter, and today we have to reach at the journey to the end of the earth by Tisani Doshi. Okay, and this is the third chapter of your Vista book. Okay, so we are going to start now. And if you are first time watching this video by this study 24/7 channel, so if you are on YouTube, subscribe the channel, join us, and if you are at Insta or Facebook, please follow us, okay, which we can send all the videos time to time. Okay, so today we are going to discuss about the chapter journey to the end of the earth. Okay, so before starting this, we will be discussing about the summary of this chapter. So the author shares the author shares her experiences when she abroad at Russian research mission. यानी कि वो अपना एक क्या कर रही हैं, जो राइटर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ इस चैप्टर में शेयर कर रही हैं। कब की कि जब वो रशियन रिसर्च विशल्स पे, जो कहाँ पे होता है, द एकेडमिक सोलास्किया, ओके, हेल्डिंग टूवर्ड द कोल्डेस्ट डाइस्ट वाइंडेस्ट एंड द कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका में। सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम द एस्टवाइल मद्रास एंड हैड टू क्रॉस सेवरल टाइम जोन। कहाँ से अपना शुरू करती हैं जर्नी? मद्रास से, और बहुत सारे टाइम जोन को क्रॉस करती हैं, वाटर बॉडीज को क्रॉस करती हैं, और बहुत सारी कोई स्फीयर को भी क्रॉस करके जाती हैं। नेक्स्ट, सी वॉज फिल्ड विथ रिलीफ आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर ओवर 100 hours एज वेल एज द प्रोफाउंड वंडर एट द इम्यूनिसिटी ऑफ द वाइट कंटिनेंट पे पहुँचती हैं। द ऑथर डिस्क्राइब हाउ अबाउट 50 million ईयर एगो, कितना ईयर एगो? 50 million ईयर एगो देयर यूज एग्जिस्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। उसको क्या कहा जाता था? गोंडवाना कहा जाता था। अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, जो कहाँ है अभी? प्रेजेंट अंटार्कटिका के अराउंड में है। ठीक है, इट वॉज द टाइम बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन beings on the planet. The continent used to be quite warmer and full of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out of the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries. क्या हो गया? देश में बदल गया। Shaping to global much and we know it today, जिसको आज हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A visit to Antarctica gives us an idea of how great changes have taken place on planet, यानी कि इस planet पे इतने सारे changes कैसे हुए। ठीक है, थोड़ा सा ओके, have taken place on our planet. There have been major geological changes of the earth crust, depletion of ozone and increase of carbon compounds, along with the evaluation and extinction of several species, plant and animals. Okay, it also evident that the Indian subcontinent, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हमारा, drifted away from गोंडवाना। कहाँ से? गोंडवाना से ही बना है। and jammed against Asia to buckle its crust and from the Himalayas, और कहाँ तक? हिमालय तक। साउथ अमेरिका also drifted to join North America, opening up the dark passage of the create a circumpolar current, keeping Antarctica freezed, desolate and at the bottom of the world. Okay, Antarctica stores about 90% of the earth ice making. 90% of the earth ice making is took like a giant ping pong ball. कैसा दिखता है? तो giant ping pong ball के जैसा, without any evidence of human settlement. However, there exists a variety of things ranging from the microscopic to the mighty
midst and the mites of blue whale and iceberg as big countries. Silence prevails everywhere except for occasional sound of avalanches of breaking ice sheet के टूटने का वहाँ पे आवाज़ आप सुन सकते हैं. Although human civilization, अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन हम मानवीय सभ्यता की हम बात करें तो हैव बीन अबाउट 12,000 ईयर्स. मैन हैज क्रिएटेड क्वाइट ए रक्स बाई डिस्ट्रक्टिंग नेचर एंड बिल्डिंग टाउन. उन लोगों ने क्या किया, बहुत नेचर को डिस्ट्रक्ट किया, बिल्डिंग्स बनाए, शहर बनाए, सिटीज बनाए. नॉट ओनली वी हैव बैटल्ड विद अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज दैट नेचर कैन प्रोवाइड, बट वी हैव बर्न्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल लीडिंग टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इसके वजह से क्या कॉज है, इसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो बना है. ठीक है, आगे चलते हैं. Going to Antarctica makes us familiar with the melting of ice for real and the question if the Gulf Stream ocean current will be disrupted or not. If this happen, अगर ऐसा होता है, it may lead to the end of the world. संसार के अंत का एक कारण बनेगा. These questions can be answered by the observing that carbon record trapped in the layers of ice. यानी कि वहाँ पे जो आइस लेयर है उसमें जो कार्बन के रिकॉर्ड है वहाँ पे हैं. Thus studying Antarctica can tell us about the अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अगर हम अंटार्कटिका को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को भी क्या करता है, क्लेरिफाई करता है. नेक्स्ट चलते हैं. द आथर वॉज पार्ट ऑफ प्रोग्राम. आथर भी क्या है, इस प्रोग्राम का पार्ट है जिसका नाम रखा गया क्या, स्टूडेंट ऑन आइस, विच गिव्स स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अंटार्कटिका एंड हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट. इसका पर्पज क्या है कि बच्चों को एक नया एक्सप्लोजर का अपॉर्चुनिटी देना और अंटार्कटिका में जाकर इस चीज़ को सीखना, समझना कि हमें अपने प्लैनेट अर्थ को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, केवल डिस्ट्रक्ट और अपने बेनिफिशियल बेनिफिट के लिए उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. इट वॉज हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन हु डिवर्टेड हिज अटेंशन फ्रॉम केयरिंग सेलिब्रिटीज टू टेकिंग यंग स्टूडेंट टू द पोल्स. पहले क्या होते थे कि उसमें केवल जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज होते थे डिफरेंट कंट्रीज के वही जाते थे, बट उन्होंने एक नया चेंजेस किया. उन्होंने क्या नहीं, उनके जगह पे अब क्या हो जाएंगे, यंग स्टूडेंट जाएंगे. इसका भी एक रीजन एनसीईआरटी में बहुत क्लियर दिया, अगर क्वेश्चन में होगा तो हम बताएंगे आपको. ही फेल दैट, वो महसूस करते हैं सेलिब्रिटीज आर पास्ट देयर प्राइम एंड हैव लेस टाइम एंड एनर्जी टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे तरफ बात करा जाए तो स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट हु हैव द विल एंड पावर टू एक्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड. वो एक बेटर वर्ल्ड के लिए काम कर सकते हैं. ठीक है, he offered the future generation of policy makers a life changing experience and age when they are ready to observe, learn and most importantly act. Okay, the program had been quite successful because it gave a live example of global warming and its impact on the ice caps. This cannot be experienced by people sitting comfortably in their rooms. Everyone who see the reality become worried about our planet. यानी जिन लोगों ने क्या किया, उस रियलिटी को, वास्तविक को देखा, उसको अपने अर्थ प्लानट के बारे में क्या है, टेंशन है, चिंता है. ठीक है, वरी है इस चीज़ को लेकर. अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट क्लासरूम बिकॉज इट कैन टीच अस द कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना क्वाइट ईजिली ड्यू टू इट्स सिंपल इकोसिस्टम. क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं. रीजन क्या है कि वहाँ पे जो इकोसिस्टम है बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है. द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक phytoplankton is taken by the author. This small green grass like organism consume the carbon dioxide to prepare food through photosynthesis. Okay, this organism not only provides food to the marine animals of the whole southern ocean but also plays an important role in maintaining the carbon cycle of our planet. The ultraviolet radiation due to a depletion of the ozone layer is destroying the microorganism. If this is not checked, the whole ecosystem will be collapse. अगर नहीं चेक किया गया तो पूरा हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट देखें. द ऑथर रिकाउंट वॉकिंग ऑन द मीटर थिक शीट ऑफ आइस अबव 100 meters of ocean water, 100 meter of ocean water, as the ship wedged herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing them from going any further. They could see the crabater cell stunning themselves on the ice. Okay, next आते हैं. After returning home,
द ऑथर स्टिल रिमेन्स अफेक्ट बाय द एक्सपीरियंस एंड कीप थिंकिंग अबाउट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट है, एंड अदर इन्वायरमेंटल हैजर्ड विच माइट ultimately leads to the extinction. However, she is confident that with programs like Student on Ice, with young student taking the initiative, the world may still be safe. क्या हो सकता है? सेव हो सकता है अगर ये यंग स्टूडेंट उसको अपनी जिम्मेदारी समझे तो. Let us will we discuss about the multiple choice question based on this chapter and summary. What is the purpose of the journey to world of the most preserved place Antarctica? तो right answer होगा to sensitize the young mind toward climatic change, यानी climatic change को दिखाना, उनको आभास कराना. Why is a visit to Antarctica important to understand effect of global warming? तो right answer इसका हो जाएगा because here one can see quick melting glaciers and collapsing ice shelves. Okay, next question देखिए, question number 3. Which program aim to take high school student to the end of the earth? तो अभी हमने पढ़ा जियोफ ग्रीन्स का प्रोजेक्ट था आइस, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम. ठीक, नेक्स्ट, व्हाई डिड जियोफ डिसाइडेड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू ऑन द जर्नी? देखिए कितना सिंपल सी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये भी लग रहा है सही कि उनको वर्ल्ड टूर का मेक देम हैप्पी, इन्जॉय उनको करना, फिर रिलैक्स है, लेकिन आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है? तो टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रिस्पेक्ट इट, अभी हम लोगों ने समझ में पढ़ा. वाई द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? क्यों है भाई? अब बहुत सारी जगह है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड एंड ट्रैप्ड इट इन इट्स आइस लेयर ऑफ आइस. आइस लेयर में क्या है? कार्बन रिकॉर्ड जो है अभी भी ट्रैप्ड है. वाई हैज़ द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? क्यों इस चैप्टर का नाम रखा? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट क्रॉस 9 टाइम जोन को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 वाटर बॉडीज को एंड मेनी इकोस्फीयर को, इसलिए उसका नाम रखा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. एक जर्नी जो अर्थ, क्योंकि अर्थ के बहुत सारे हिस्सों से वो जर्नी हो रही थी. व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च व्हीकल? अभी हम लोगों ने पढ़ा तो क्या था? एकेडमिक सोलेस्की था. ठीक है, याद रखिएगा. व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? तो एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट था. ठीक है ना. नेक्स्ट आइए, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन द प्रोग्राम? क्या ऑब्जेक्टिव था? तो टू इनेबल देम टू थिंक डिफरेंट टू सेव द प्लैनेट. ठीक है, अगला आइए, व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द कंटिनेंट? क्या डिस्टर्ब कर रहा है? तो जो हमारा क्या वहाँ पे एवलांचेस है वो उसको क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं. व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ग्रेट सक्सेस? क्यों हुआ? तो बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द यंगेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका? कैसा वहाँ पे है? तो वहाँ पे कोल्डेस्ट भी है, ड्राइस्ट भी और विंडेस्ट भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज. ठीक है. वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट? कहाँ पे? तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में. वाई इज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर? अंटार्कटिका प्योर क्यों है? बिकॉज नॉट एक्सिस्टेंस, वहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, हम लोग जैसे लोग नहीं रहते हैं. अगर ऐसे लोग होते तो उसको भी क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते, जैसे अर्थ को कर दिए. तो आई होप डियर स्टूडेंट यू आर गेटिंग दिस क्लास एंड यू आर टेकिंग टू मच बेनिफिट फॉर योर स्टडी. तो ऐसे हम बहुत सारे अभी हमारे प्लानिंग्स है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. इसके बाद हम लेके आने वाले हैं PYQ सीरीज को. PYQ सीरीज के बाद अभी हमारी आएगी फिर से NCERT सीरीज. ठीक है, और उसके बाद से हमारा तो ये चलता है. बस आपको करना क्या है, जब भी आप इस वीडियोज को देखिए, वीडियोज को पॉज करिए, रोकिए और चीज़ों को पढ़िए और समझिए. उससे आपको क्या होगा, इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है जो आपको किसी न किसी ईयर न पूछे गए हों या न पूछने का एक्सपेक्टेशन हो. दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो को पॉज करिएगा. हम क्यों नहीं पूरा पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते हैं? देयर इज अ रीजन, बिकॉज इट विल बी टू मच टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ और आप लोग ज़रूर पॉज करके वीडियोज़ को पढ़िए. अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल लाइक व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा पे इसको शेयर करिए. और अगर पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करिए. और आजकल मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन नहीं आ रहे हैं. कमेंट सेक्शन में बस वही 8-10 कमेंट आ जा रहे हैं आप लोगों के. सो डोंट फॉरगेट टू राइट इंग्लिश बाय अमरनाथ सर हैशटैग के साथ. अगला MCQ एक और है, देख लीजिए. इफ़ यू वांट टू नो आवर अर्थ, इफ़ यू वांट टू नो आवर, आइए भाई क्या हो गया आपको? आई होप इनकी कोई परेशानी हुई, कोई नहीं. तो द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेयर शुड वी गो? कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में. एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट को पढ़िएगा आराम से, सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं इसके बिहाफ पे. ठीक है,
उसका आंसर्स भी यहाँ दिया है। पहले क्वेश्चन कर लीजिएगा 4 क्वेश्चन, फिर से यहाँ से मैच कर लीजिएगा चारों। फिर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड एक्सट्रैक्ट इसके बिहाफ पे। ओके, आई होप अगर इस PDF को आप पूरी पढ़े आते हैं, और मैं कहता हूँ आपसे कि आप इंग्लिश के लिए ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आप हम पे ट्रस्ट करिए। इस PDF को एक हमारी क्लास देखिए और उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ जाइए। आपका मैं कह रहा हूँ एग्जाम आते आते कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन इंग्लिश का हो जाएगा। नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट 95+ मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, थर्ड स्टेंजा है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज डज अ विजिट टू द अंटार्कटिका गिव, क्या एडवांटेज उसका रहा। हाउ लॉन्ग वाज द जर्नी ऑफ तिसानी डोसी टू अंटार्कटिका। ठीक है, व्हाट आर द इमोशन ऑफ तिसानी डोसी ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, क्या इमोशन था। ये सब क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं, ये सब सारे क्वेश्चन उससे निकाले गए हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, व्हाट इज गोंडवाना, व्हाट काइंड ऑफ लिप्स एग्जिस्ट देयर, हाउ डिड अंटार्कटिका बिकम एन आइसोलेटेड लैंड मास, हाउ डज वन लॉस द सेंस ऑफ perspective and time at the Antarctica, how has man made mayhem after his arrival on the planet, what two conditions make Antarctica important for the future of mankind, what is the student on ice, what are its objective, क्या इसका objective था, what has the program student on ice been successful, why, क्यों हुआ था successful, why does the narrator say take care of small thing, the big things will fall into place, ये क्यों ऐसा कहा था, उसका क्या पर, why did जॉफ ग्रीन डिसाइडेड नॉट टू टेक सेलिब्रिटी टू द पोल, और उनके जहाँ पर स्टूडेंट क्यों लगे हुए। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, ही कुड वन से दैट द अंटार्कटिका इज द बेस्ट क्लासरूम, कोई कह सकता है तो किस बिहाफ पे कह सकता है उसका देखिएगा। ठीक है, दूसरा टेक केयर द स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द चैप्टर जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, उसका एक्सप्लेनेशन आंसर यहाँ पे। सो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखना बेटा, इट विल बी सो हेल्पफुल टू यू। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रेटजी डे 1 से अभी से भी बना लेते हैं, जब से मैंने अपनी क्लासेस को शुरू करा है, तो श्योर है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और बेस्ट मार्क ला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने मेन सब्जेक्ट के साथ में इसको देख ही नहीं पाते। वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं लास्ट में पढ़ लूँगा, वेस्ट टाइम नहीं करूँगा। बेटा आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, आपको 5 सब्जेक्ट पे आपको एग्जैक्ट अपना ग्रिप रखना है, तब जा कर के आपको मिल पाएगा। और इंग्लिश का लेवल हर साल अपग्रेड कर रहा है CBSE या जो भी बोर्ड्स हैं। तो आई एम टेलिंग टू यू अगेन, डोंट टेक इट लाइट, हर दिन 30 से 35 मिनट दीजिए, एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।